Good morning, friends. Let's start. Let's start. कार्ड जस्ट सुबह के चल गए Let's start. Slope and deflection of beam division. Slope, deflection, methodology, structure and analysis method of beam and frame introduced 1914 by George Money. Deformation due to bending only. Strength and stiffness are two main design criteria of a beam. Strength and stiffness are two main design criteria for a beam. Deflection is the vertical distance between the axis of beam before after loading of at the beam at that point. Deflection is always zero at support. Slope, angle between deformed beam to the actual beam. Angle between deformed beam to the actual beam at the same point is called slope. Deformed beam to the actual beam. Method of slope and deflection. Moment area, Mohs method, slope and deflection. Slope and deflection. It is a graphical method that relates slope and deflection of beam. Mohs area. Graphical method that relates slope and deflection of beam. This method is more suitable where position of centroid of the bending moment area is known. It is most useful compared to a double integral method. More useful. Theta is equal to A by AI. Theta is equal to A by AI. Y is equal to AX bar by AI. Mohs theorem. Conjugate beam theorem method. और क्या लगेगा कटा हुआ है सब अरे एकदम बहुत हाथ से कूड़ा भी हटा दिया गया Conjugate beam method is developed in Heinrich Müller-Dirichlet in 1865. It is a graphical method. Find slope and deflection at particular point मिर्ची भी होगा in a static determinate structure. In this method, given beam is firstly converted into a conjugated beam. Conjugate beam में बदल दिया जाता है. This method provides very easy approach. This method modified from the moment area method. M से C हुआ. Moment area method, conjugate beam method. Calculate हुआ जाने conjugate beam method. Conjugate beam method can be directly used for simply supported beam.
conjugate beam, an imaginary beam for which the load diagram M upon EI called conjugate beam. M upon EI का load diagram. If M upon EI is positive, loading is upward. Conversion of actual beam into conjugate beam. हिंज सपोर्ट को हिंज रहेगा, रोलर रोलर, स्लोप एट एनी पॉइंट. कंजुगेट में बीम में क्या बताएगा? shear force at any point. Slope, shear. डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट क्या बताएगा? कंजुगेट बीम में बेंडिंग मूवमेंट, स्लोप, डिफ्लेक्शन, शियर, बेंडिंग एट एनी पॉइंट. M upon EI diagram due to the applied load and curvature loading on conjugate beam. Diagram. क्या बताएगा? लोडिंग. दोनों चीज़ें हो गई, शियर हो गया, बेंडिंग हो गया, बचा लोडिंग. फिक्स एंड रहेगा. इंटरनल हिंज इंटरनल रूलर हो जाएगा. हाँ इंटरनल पिन हिंज हो जाएगा. हिंज हो जाएगा. 3N फिक्स हो जाएगा. गिवन लोड M अपन I डायग्राम हो जाएगा. यहाँ पे आकर लोड था, M अपन EI डायग्राम था तो लोड हो गया था यहाँ पे. ठीक है ना. यहाँ पे अगर लोड दिया जाएगा तो M अपन EI डायग्राम हो जाएगा. डबल इंटीग्रेशन मेथड. द फर्स्ट इंटीग्रेशन yield the slope and second gives the deflection. फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या देगा? स्लोप. सेकंड डिफ्लेक्शन. डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन कर्व इज इक्वल टू ए इंटू वाई डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर -m. This equation is also known as basic formula of slope and deflection. Slope and deflection. फर्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो I dy upon dx ei into theta equal to -m plus c1. सेकेंड टाइम कर देंगे तो ei y बराबर डबल इंटीग्रेशन माइनस को याद रखना है. -m plus c2. dy और dx क्या होता है? स्लोप. ठीक है ना. मोमेंट एरिया एंड डबल इंटीग्रेशन मेथड आर सुटेबल फॉर यूनिएक्सियल और सिंगल लोड. पूछा जाता है. मोमेंट एरिया एंड डबल इंटीग्रेशन. एम का अपग्रेड वर्जन सी है कॉन्जुगेट बीम, बट
एम और डी में रिलेशन है। डबल इंटीग्रेट मेथड और मोमेंट एरिया मेथड आर सुटेबल फॉर यूनी एक्सियल और सिंगल लोड। ठीक है, अगला देखते हैं फिर से एम आया मकाले मेथड। इट इज़ वेरी एफिशिएंट फॉर पॉइंट लोड, ये भी पॉइंट लोड के लिए और डिसकंटिन्यूस लोडिंग कंडीशन। डिसकंटिन्यूस लोडिंग कंडीशन के लिए मैकाले होता है। मैकाले मेथड इज यूज्ड इन स्ट्रक्चर एनालिसिस टू फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, बेंडिंग मूवमेंट एंड कर्वेचर फ्रॉम ऑयलर बर्नौली थ्योरम, बीम थ्योरी। इसके द्वारा ऑयलर बर्नौली बीम थ्योरी के द्वारा फाइंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, डिफ्लेक्शन बताता है, बेंडिंग मूवमेंट एंड कर्वेचर। ऑयलर बर्नौली बीम थ्योरी के द्वारा when distance x move past here the load is applied। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए आई डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर बराबर एम एक्स। ठीक है, द मैकाले ब्रैकेट एक्स माइनस ए की पावर एन एक्स एंड एक्स, ये इसकी वैल्यू जीरो होगी तब जब एक्स इज लेस देन ए है, और एक्स माइनस ए की पावर एन एक्स इज ग्रेटर देन ए। इस कंडीशन में ये वाली वैल्यू रखी जाएगी। फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ द लोडिंग एन वैल्यू क्या होगी, तो पॉइंट लोड के लिए 0 होगी, पॉइंट मूवमेंट के लिए 0 होगी, जबकि पॉइंट लोड के लिए 1 होगी। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए 2 होगी और यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड के लिए 3 होगी। जीरो, इसको पूरा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 3। सेक्शन इज कंसीडर्ड विदिन 2 लोड, 2 लोड के बीच में हम सेक्शन को कंसीडर करते हैं मैकाले मेथड में। MSc पास मसाले यहाँ पे आएगा, मसाले वाले में आएगा। इसमें 2 पॉइंट के बीच में सेक्शन को कंसीडर किया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो याद रखना है। सेक्शन इज कंसीडर बिटवीन 2 लोड, सुटेबल फॉर सेवरल लोड। कई सारे लोड हैं तो भी बता सकता है। ठीक है, दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड मेथड ऑफ सिंगुलरिटी फंक्शन, मेथड ऑफ सिंगुलरिटी फंक्शन, सिंगुलरिटी फंक्शन। सुपरपोजिशन मेथड, सुपरपोजिशन मेथड याद रखना है। द डिफ्लेक्शन
slope or beam, no, slope or deflection. The deformation, slope or deflection of a beam at any point is equal to the resultant of the deformation. डिफॉर्मेशन किसी पॉइंट पर इक्वल है किसके द्वारा, रिजल्टेंट ऑफ द डिफॉर्मेशन, रिजल्टेंट के बराबर। At that point, superposition method is valid up to proportional limit. सुपरपोजिशन मेथड कब तक है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक है। स्ट्रेन एनर्जी मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, अल्बर्टो कास्टिग्लियानो developed a method to find out deflection of a structure by strain energy. When external load are applied on elastic body, they deform. Okay. Alberto Castigliano developed a method to find out deflection of a structure by strain energy. When external load are applied on an elastic body, they deform. MC है डबल MCD ठीक है। मूवमेंट एरिया, कॉन्जुगेट बीम मेथड, डिफ्लेक्शन मेथड, नहीं डबल इंटीग्रेटेड। डबल MCD डबल इंटीग्रेशन मेथड, फिर मैकाले मेथड, फिर सुपरपोजिशन MS सुपरपोजिशन मेथड, फिर स्ट्रेन MSS स्ट्रेन मेथड। छह मेथड स्ट्रेन मेथड में when the external load are applied on an elastic body, they deform. Castigliano deform। स्ट्रेन एनर्जी किसने बताया, कास्टिग्लियानो ने। इसका फार्मूला क्या होता है, डेल्टा बराबर डेल्टा यू अपन डेल्टा पी, थीटा बराबर डेल्टा यू अपन डेल्टा एम। डिफ्लेक्शन स्लोप, डिफ्लेक्शन जो होगा पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा एनर्जी का लोड के साथ, जबकि स्लोप जो होगा पार्शियली डिफरेंशिएट बिफोर ये लोड के साथ है, ये मूवमेंट के साथ है। डाल देते ना कम से कम 2 मिनट खराब हो जाएगा। कर दे रहे हैं हो जाएगा आज, अभी चाहे करेंगे। स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ द लोड इनटू डेल्टा के बराबर, ठीक है। इसी को अगर देखो मूवमेंट के साथ, तो मूवमेंट का एक बार इंटीग्रेशन MMX U बराबर हाफ P इंटू डेल्टा
या फिर इंटीग्रेशन एम स्क्वायर अपन 2EI इंटू DX। मूवमेंट के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे मूवमेंट के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। जबकि लोड के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे वैल्यू को तो हमें रिफ्लेक्शन मिलेगा। डिफ्रेंशिएशन स्लोप शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डिफ्लेक्शन, लेकिन इसमें डिफ्लेक्शन बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, स्लोप दे रहा है मूवमेंट की वजह से यहाँ पे स्लोप आ रहा है, तो ये डिफ्रेंशिएशन हो रहा है इंटरचेंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोड डिफ्लेक्शन देता है और स्लोप जो है ना मूवमेंट देता है। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो बनती है डिफ्लेक्शन के लिए, डेल्टा बराबर PI इंटू वाई, स्लोप बराबर PI DY होगा DX। DI होगा DX। मूवमेंट बराबर हो जाएगा EI DY D स्क्वायर वाई DX स्क्वायर। शियर फोर्स बराबर हो जाएगा डिफ्लेक्शन बराबर EI इंटू वाई, स्लोप बराबर EI DY ओवर DY, मूवमेंट बराबर EI D स्क्वायर वाई अपन DX स्क्वायर। शियर फोर्स बराबर हो जाएगा इफ थर्ड डिफरेंशिएशन ऑफ द, ये है वाई बराबर डिफ्लेक्शन का, नहीं वाई क्या है, डिफॉर्मेशन, फोर्थ डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, लोड। फोर्थ डिफरेंशिएशन पूछा जाता है कौन सा थर्ड है फोर्थ है, तो फर्स्ट हो जाएगा डिफ्लेक्शन, सेकंड स्लोप, थर्ड नॉर्मल होता है। देखिए डिफ्लेक्शन का फर्स्ट जो डिफ्लेक्शन होगा नॉर्मल इक्वेशन की डिफरेंशिएशन होगा वो स्लोप होगा। मूवमेंट जो होगा वो सेकंड डिफरेंशिएशन होगा। शियर फोर्स जो होगा वो थर्ड डिफरेंशिएशन होगा। लोड होगा फोर्थ डिफरेंशिएशन होगा। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बीम एट डिफरेंट लोडिंग पे स्लोप और डिफ्लेक्शन के बारे में बताना है। सिंपली सपोर्टेड बीम में ये है, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट लोड लगा है अनसिमेट्रिकल कंडीशन में, तो थीटा ए बराबर हो जाएगा P इंटू बी अपन 6EI इंटू एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बनाया जाएगा